So can I hear claps for one of the ex-students of our school, Mr. Nikhil Shirsagar. So I request HM to please take a seat so that we can call Nikhil on the stage. And I would request two students of 10 to please accompany him on the stage. He is a part of the military of the country, and it is a proud privilege for us to have him over here. The students of 10, they have taken initiative to have an interaction with Mr. Nikhil. So let us join this interaction and make this event a nice one. So most welcome, Nikhil. I would request the HM to please appreciate his efforts with a floral tribute. Actually, Bijoy Sir, David sir, they were going to join us, but they are a bit busy in the meeting. Now, it is really a privilege for us to know that one of the students of our school, who was a simple student but an obedient one, has gone a very long way. Now, to hear more about him, we have two good interviewers, rather interactors who are going to those who are there can come up on the stage. And okay, before that we'll have the national anthem as the protocol calls for it. So can I request everyone to stand up for the national anthem? This is the protocol of any event. Now, before we started, some few minutes back, Neha teacher was saying, long ago when he was a student, we used to screw his ears, and the same hand which screwed his ears are now patting him. So I think really it is a matter of great thing that he has gone a very long way in his life, though he was a simple student and of course a disciplined one. And I think even the headmistress is very happy. She was the one to guide him when he was a student, and now he has really done a great thing for the country and is going to do more and more things. So let us know more about him from the children of 10th who have prepared some questions to interact with him. A very warm welcome to Mrs. HM Ma'am Rafat Sheikh and a warm welcome to Nikhil Shirsagar.
reaching the destination by destiny isn't always true, and living in luxury isn't always possible. With this, I welcome you all. Good morning, dignitaries, teachers, and all my dear friends present here. I want to ask you all a question. May I? What do you understand by the word galvanization? What do you understand by the word galvanization? I'll answer it for you guys. Galvanization is the process of coating a metal with another metal to protect it from rusting. In the same way, Galvanized Youths is an interview taken to coat the young minds of today with the inspiration of not getting rusted out by demotivating actions. My heart is filled with blaze of patriotism, and my mind is flipping with the thought of an army officer present here with us at this moment while I speak. We have Mr. Nikhil Shirsagar, an on-board gunner here with us today. He's an ex-student from Holy Angels School and Junior College, passed out in the year 2018. In the vast collection of his accolades, he has PNC Cadre Best Performance Award, Green Horn Cadre Best Recruit Award. He has also acquired the Best Firer Award in Mahajan Firing Range. He has an excellent physical standard in every test. With this, I hand over the mic to the interviewers and let's begin with the interview. हेलो हेलो सो क्या आप हमें आपके प्रोफेशन के बारे में कुछ बता सकते हैं? जैसे पहले मेरा नाम आवाज आ रही है? पहले मेरा नाम बस नॉर्मल लगता था, निखिल क्षीरसागर, ये बस मेरा टाइटल था। अब जो मेरी पहचान है ये गनर निखिल क्षीरसागर के नाम से जान जाती है। गनर ये वो शब्द है, गनर का मतलब क्या है? अ स्पेशलाइज्ड मैन हू यूज स्पेशलाइज्ड वेपन। मैं आर्मी एयर डिफेंस में एक जवान हूँ। आर्मी एयर डिफेंस एक इंडियन आर्मी की एक रीढ़ की हड्डी है, समझ लो। हमारे पास जो भी एंटी एयरक्राफ्ट गन्स है, मिसाइल से, रेडियो सेट से, रडार से, हम पूरा उससे डील करते हैं। हम एनिमी के एयर थ्रेट से हम जो भी हमारा वीएवीटीज होता है उसे एयर प्रोटेक्शन देते हैं। और ये गनर ट्रेड है, जैसे हमारे इसमें 3-4 ट्रेड है, गनर हुआ, ओएफसी हुआ, ओपीआर हुआ। गनर ये उन सब में से मार्शल ट्रेड बोला जाता है, आर्टिलरी और एडी में मिलते हैं। तो मैं एयर डिफेंस का एक गनर हूँ। हेलो, किस चीज़ ने आपको भारतीय सेना में शामिल होने के लिए प्रभावित किया है? किस चीज़ में? एक्चुअली देखा जाए तो मैं पहले से इंटरेस्टेड नहीं था इतना आर्मी में ज्वाइन होने के लिए। जैसे सारे टीचर्स लोग जानते हैं, तुम्हें भी जानती अच्छे से मेरे लिए, कि मैं बहुत मस्ती करता था। मतलब हर 2 दिन बाद विजय सर के पास खड़ा होना, हर पहले दिन क्लास के बाहर, मेरी टीचर आते ही क्लास से बाहर, इतना मस्ती करता।
बहुत। मैं कभी अपनी लाइफ को सीरियस नहीं लिया। मैं जब जिस टाइम पे मैं फेल हुआ, जिस टाइम पे मेरे को अपनी लाइफ में फेलियर आई, मेरे को मालूम पड़ा कि हाँ भाई मैं आज फेल हुआ, 11th में फेल हुआ था, तब से मैं अपनी लाइफ को सीरियस लिया। जहाँ पे भी जाता, लोग उठते सोते ताने ही ताने का। सबसे मेरे प्यारे दुश्मन तो है मेरे रिलेटिव्स। ये कुछ नहीं कर पाएगा, भगवान कसम बता रहा हूँ, कुछ नहीं कर पाएगा। सुबह इतने बजे उठता है, इतने बजे सोता है, कुछ नहीं करता। जब मालूम पड़ा कि अब कहीं पे भी दिख नहीं रहा, 11th फेल हुआ, 12th दी, इसी कॉलेज से दिया, 70 नंबर फॉर्म भर के 12th पास हुआ। उसके बाद खुद को एक टाइम दिया। आजकल के लड़के यही कम करते हैं, पूरे सबके लिए टाइम निकाल देते हैं। आज की जो युवा पीढ़ी है, मैंने बुलाया, अरे निखिल का बर्थडे, चलो निखिल के बर्थडे के उसके लिए 2 घंटे टाइम दे देंगे, पर खुद के लिए कभी टाइम नहीं देते। आजकल की युवा पीढ़ी की यही कमी है, जो खुद को टाइम नहीं देते। तो खुद को टाइम दो। मैंने वही किया। मैं 12th होने के बाद मैं सोचा कि नहीं, अब मेरे को कुछ नहीं करना। मैं एक फेलियर से उठाऊँ, कैसे तो करके 12th पास हुआ, 12th पास हुआ, अब कुछ तो करके दिखाना। मेरे बहुत से फ्रेंड्स ऐसे थे जो 28 के हो गए, 29 के हो गए, 30, 32 के हो गए, शादी हो गई पर जॉब नहीं है, कहीं जॉब नहीं है ना कहीं रिस्पेक्ट है। तब एक ही दिखा कि हाँ पापा मेरे आर्मी बैकग्राउंड से थे, पर इतना कभी इंटरेस्ट नहीं दिया बीच में। और एक और इंटरेस्टिंग बात उसमें, उस टाइम पे आगे उरी अटैक मूवी, पूरी मूवी वो देख के खुद को मोटिवेट किया। रोज़ सुबह उठना, तैयार होना अगले दिन के लिए, प्रैक्टिस करना दबा के। 1 साल मैंने पूरा प्रॉपर अपने लिए टाइम निकाला, पूरा। ना कोई रिलेटिव्स, ना फ्रेंड्स, ना कुछ, ना सोशल मीडिया। 1 साल के लिए पूरा गायब हो गया। तो आपने कब फैसला किया कि आप भारतीय सेना में शामिल होना चाहते हैं? क्योंकि एक वो अलग ही जज्बा था। यूनिफॉर्म, नॉर्मल पुलिस वाला और एक यूनिफॉर्म, बहुत फर्क है। जब आप यूनिफॉर्म पहनते हो ना, इतना ज़्यादा तो कोई भी काम इम्पॉसिबल नहीं लगता। हम खुद, मैं अभी सिविल ड्रेस में हूँ, मेरे को आप कुछ काम बोल दो, बहुत हार्डियस्ट काम, कुछ भी, कि भाई बिल्डिंग तोड़नी है, इम्पॉसिबल है, कैसे तोड़ पाएंगे। और यही यूनिफॉर्म में मेरे को 10 बंदे दे दो यूनिफॉर्म वाले, 1 घंटे के अंदर एक बिल्डिंग याद करें। वो यूनिफॉर्म पहनने के बाद अलग ही ताकत आ जाती है, पता नहीं क्या ताकत है उसमें, पर अलग ही मजा है उसमें। इतनी बड़ी सफलता पर पहुंचने के लिए आपको क्या क्या सैक्रिफाइसेस करने पड़े थे? सैक्रिफाइसेस तो बहुत कुछ किया। सबसे पहले तो सोशल मीडिया। उस टाइम पे एक ही चीज़ मेरे को लग रही थी कि मेरा डिस्ट्रैक्शन का एक ही जो कारण है वो सोशल मीडिया। इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप फिर भी चलता था थोड़ा बहुत, पर फेसबुक और इंस्टाग्राम दिल पे पत्थर रख के बंद किया था मैंने जिस टाइम पे। और बाहर घूमना मालूम पड़ रहा था धीरे धीरे। जब फेलियर आया, वो कहते हैं मराठी में कहावत है, अपयश यशाची पहिली पायरी है। हाँ, ये मुझे मेरे मामा जी ने एक बार बताया था, ये चीज़ बोला जब मैं 11th फेल हुआ। सबने ताने मारते, बस वही मेरे को था तो मेरे को उसने बस ये शब्द बोला था। तब लगा था कि नहीं, अभी कुछ तो करना है, अभी कुछ तो करना है। तब जाके मैंने डिसीजन किया। सेना में शामिल होने से पहले आपने सैन्य जीवन की कल्पना कैसे की थी और सेना में आने के बाद आपके विचार कैसे बदले? सेना में जाने से पहले तो मैं भी ऐसी नॉर्मल लाइफ की तरह सोचा था, जैसे मूवीज़ में दिखाते हैं कि हाँ सुबह उठता है, आराम से ड्रेस पहनता है, जाता है ड्यूटी करता है, या कुछ भी बाहर का अदर वर्क हो, ऑफिशियल वर्क हो, वो करके दोपहर में आता है, खाना खाता है गर्मा गर्म, फिर शाम को वापस थोड़ी बहुत पीटी गेम में चलता है। उसके बाद वापस दूसरे दिन नाइट ड्यूटी दो। सबसे बेस्ट तो नाइट ड्यूटी दो, दूसरे दिन मत आओ। ऐसा लगता था मुझे, नाइट ड्यूटी दिया, दूसरे दिन छुट्टी। मुझे एक्चुअल में ऐसा लगता था। मेरे को, मैं कभी पापा से भी नहीं पूछा था कि कैसा होता है आर्मी। मैं जब तक आर्मी कॉलेज में भी रहता था, मैं यही देखता था कि हाँ भाई ड्यूटी से आ गया, अभी क्या रेस्ट करता होगा। तो मेरा दिन भर का शेड्यूल रहता था, सुबह क्लास, स्कूल, ट्यूशन, इसी में मेरा पूरा दिन खत्म। और छोटा था उस टाइम तो समझ इतनी थी। पर आर्मी में जाने के बाद वही चीज़ फ़र्क पड़ गया, बहुत मैटर करता है। सुबह निकलो, 4:30-5 बजे उठो, फ्रेश हो। जैसे यहाँ बैग लेके निकलते हैं घर से,
हम भी बैग निकल के निकलते हैं, पर छोटा वॉलेट होता है, उसके अंदर फैमिली का फोटो होता है। इधर बंदा आ भी जाता है, उधर यही नहीं मालूम पड़ता कि बंदा आ भी पाएगा या नहीं, दोपहर के खाने के लिए बंदा है या नहीं, शाम के खाने में क्या है, खाना मिलेगा या गर्मा गर्म मिलेगा कि नहीं, ये तक मालूम नहीं पड़ता। नाइट ड्यूटी होती है, 2 घंटे की नाइट ड्यूटी, मतलब अल्टरनेट देते, फर्स्ट सेकंड थर्ड ड्यूटी में शिफ्ट हो जाते, 2-2 घंटे की एक दूसरे में बांट लेते। 2 घंटे की ड्यूटी में ऐसा लगता है कि कब ये टाइम निकलेगा, कब ये, कुछ नहीं रहता है, दूर दूर तक कुछ नहीं लगता है, कुछ नहीं दिख रहा है, बस पहाड़ियाँ या बस तार ही तार। मतलब जो अगर बॉर्डर साइड में अगर जाए तो जो फेंसिंग होती है, फेंसिंग में क्या, हम हर जगह तो CCTV लगा नहीं सकते, क्योंकि वो हमें भी उसका नुकसान है, लाइट्स लगानी पड़ेगी इसके लिए। और तो क्या करते हैं, जो बियर बॉटल्स होते हैं या अल्कोहल की जितनी बॉटल्स होते हैं उसको बांध देते हैं एक साथ, मतलब अगर थोड़ी भी वायर हुई तो आवाज़ आता है कि कोई तो आया है। रात को उसका आवाज़ होने से नींद नहीं आती। लेह लद्दाख में तो ऐसी कंडीशन है कि रात को आप ड्यूटी दोगे, 2 घंटे की ड्यूटी, पूरे रात भर में आपको 4 घंटे नींद मिलती है। 2 घंटे की ड्यूटी दो, 4 घंटे सोने जाते हो, तब तक पैर गर्म नहीं होते, तब तक नींद नहीं आती। 1 घंटा तो पैर गर्म होने में लग जाता है, और वो भी कैसे, पहले तो कपड़े उतारने की हिम्मत करो, जैकेट जैकेट इतना पहन के नहीं सो सकते, सफोकेशन की वजह से ऑक्सीजन लेवल डाउन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है रात में, इसलिए। और सॉक्स वगैरह पहन के नहीं सो सकते, क्योंकि सब ऊपर से नीचे पूरा कवर अप है, कैसे सोंगे। जो स्लीपिंग बैग होता है उसके अंदर खुद के ऑक्सीजन से खुद को गर्म करना पड़ता है। डायरेक्ट आप हीटर के पास पैर नहीं रख सकते, नहीं तो पूरा पैर फट जाता है। तो पूरे 4 घंटे की नींद में बस 2 ही घंटा सो पाते हो, और दूसरे दिन उठ के वही PT में जाना है, वापस दिन भर का शेड्यूल, वापस शाम को ड्यूटी हो तो ड्यूटी, नहीं तो रेस्ट तो रेस्ट। ये फ़र्क था सिविल लाइफ और आर्मी लाइफ। जब आपका नाम भारतीय सेना में दर्ज हुआ तो आपकी क्या रिएक्शन थी? मैंने एक्चुअली देखा जाए, भर्ती होने से पहले मैंने 8 अटेम्प्ट दिए थे, 8 अटेम्प्ट दिए थे, 8। मैं 9th अटेम्प्ट में पास हुआ। मैं हर जगह जाता, फेल होके आता, हर जगह जाता, फेल होके आता, पर कभी खुद को डीमोटिवेट नहीं किया। ना मैंने किसी को रोल मॉडल बन के कि भाई मेरे को इसके जैसा बनना है, मैंने कभी किसी को अपना रोल मॉडल नहीं रखा। मैं खुद को अपना रोल मॉडल बन के आगे चला कि हाँ, मैं इस टाइम पे नहीं उठ सकता, तो मैं 10 बजे उठूँगा, 10 बजे अपना प्रैक्टिस करूँगा, और वापस घर आके वापस अपना घर पे ही प्रैक्टिस करूँगा। मैं एक्चुअली देखा जाए, मैं पागल हो गया था उस टाइम पे, पूरा 6-7 महीने के पीरियड में पागल हो गया था। लोग पागल कहते थे, ऐसे रास्ते से दौड़ता था दोपहर के 12 बजे, तो मेरे को पता था मैं कम किस में हूँ, रनिंग में मैं कम हूँ, कि जो मेरे को दिया हुआ टेस्ट है वो मेरे को उस टाइम पीरियड में कवर नहीं करूँ, इसका मतलब मेरे में कमी है, कोई दूसरा नहीं आएगा मेरी कमी करने के लिए। तो मैं खुद करता था, सुबह वर्कआउट, दोपहर में वर्कआउट, शाम को वर्कआउट, 3-3 टाइम में बदलापुर, अमरनाथ दोपहर में टच करके आता था वापस। ऐसा पागल हो गया था उसमें। आपने अपने परिवार और दोस्तों को कैसे बताया कि आप सेना में शामिल हो चुके हैं, और उनका इस पर क्या रिएक्शन था? जब बताया था तब तो कोई यकीन नहीं कर रहा था कि ये हो गया करके सच में। मेरा जिस दिन रिजल्ट आने वाला था, तो बहुत सारे लोग एट ए टाइम एक वेबसाइट पर घुसते तो क्रैश हो जाती है वेबसाइट। उस टाइम पे वही सिस्टम हुआ। मैं भाई के ऑफिस में था, नया ऑफिस था, उधर वाईफाई, और मेरा बैलेंस उसी दिन खत्म हो गया। मेरे को एक ऐसी हालत, मेरे को रोना भी आ रहा है, हंसने को भी आ रहा है, मुझे कुछ नहीं मालूम पड़ रहा था कि क्या रिजल्ट है। मैं देख रहा हूँ कुछ ओपन नहीं हो रहा। मेरा दोस्त मुझे कॉल करके बोल रहा है कि भाई तेरा नंबर आ गया, तो पास हो गया, तेरा इंडेक्स नंबर है। मैं देख रहा हूँ मेरा इंडेक्स नंबर नहीं मिला। तो मुझे लगता था कि जो मेरिट लिस्ट आती है आर्मी की, जितने भी सिलेक्शन की, तो वो स्टेट वाइज आती है। जैसे महाराष्ट्र के 10 तो 10 की एक साथ लिस्ट आती है, हरियाणा की 100 तो 1 साथ, यूपी की 100 तो 1 साथ। मैं महाराष्ट्र के कॉलम में देखा, महाराष्ट्र के बस 2 ही बंदे भर्ती हुए थे, ऑल ओवर महाराष्ट्र के। मेरा नाम ही नहीं था उसमें, 2 बंदों में। इमेज में ज़्यादा बड़ा दिख रहा था, इमेज देखा, उसमें मेरा यही नहीं था। मेरे को एक्चुअली पूरा रोने का आ गया, मैं पूरा फ़ोन छोड़ दिया था अपना। फिर मेरा दोस्त बोल रहा कि नहीं तू पास है, देख। जब मैंने अपना पूरा स्टार्ट टू एंड वापस अपना नाम देखा मेरे लिस्ट में, मेरा नाम 37th रैंकिंग पे था। मतलब जब मेरी सिलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट हुई थी, उस टाइम पे 5,500 बंदे आए थे मेरी सिलेक्शन प्रोसेस में। 5,500 में से सब फिजिकल में
हफ्ते 850, उसमें मेडिकल में सारे क्लियर आउट होते होते 750 बंदे, 750। और एक पॉइंट तो उसमें मेरा भी ऐसा आया था कि मेरे को भी री मेडिकल पॉइंट मिला था, मैं राउंड पास हो गया था, तो री मेडिकल का पॉइंट मिल गया था। मेरे को पैर में बोले फ्लैट फुट है, जो आर्मी में टेस्ट होता है पैर में फ्लैट फुट नहीं होना चाहिए, पैर मेरा स्ट्रेट था, वो बोले स्ट्रेट है एक पैर, तो उसके लिए री मेडिकल में 8 दिन उसके री मेडिकल के चक्कर में बस आर्मी हॉस्पिटल के मिलिट्री हॉस्पिटल में चक्कर मारते वापस। जिस टाइम पे मालूम पड़ा कि हाँ मेडिकल पास हो गया, उस टाइम पे मेरे पास दिन के 35 डेज थे मेरे पास पढ़ाई के लिए, और कुछ प्रिपरेशन नहीं की कि क्या पढ़ाई करूँ क्या नहीं। सीधा वहाँ से पहले तो ऑनलाइन बुक्स ऑर्डर करी, घर जाने तक बुक्स आ गई, 2 दिन रेस्ट किया, उसके बाद पूरा फिजिकल वर्कआउट छोड़ दिया, पूरा फिजिकल वर्कआउट पूरा। उस टाइम पे तो इतना स्ट्रिक्ट कर दिया तो खुद को, ना टीवी ना फ़ोन ना व्हाट्सअप ना इंस्टाग्राम, सब बंद, पूरा का पूरा बंद। मेरा डिस्ट्रैक्शन होता था बस, थोड़ा थक गया इंस्टाग्राम, थोड़ा थक गया फेसबुक, पूरा बंद कर दिया। कुछ खाएंगे तो कहाँ से डाउनलोड करूँ, कहाँ से देखूँगा, अकाउंट ही डिलीट, कुछ नहीं। जब मालूम था कि 8 अटेम्प्ट के बाद तो 9th अटेम्प्ट में पास हुआ है, अगला फ्यूचर तुमने देखा नहीं कि तो अगले फ्यूचर में पास हो गए नहीं, तेरा नसीब साथ देगा या नहीं, इसमें नसीब की भी बात होती है, साथ देगा या नहीं। 35 डेज में खुद को ऐसा प्रिपेयर किया, सुबह शाम बस पढ़ाई पढ़ी, ऐसा एक बुक नहीं छोड़ा। NDA, फिर जो आर्मी के GD बुक्स है, नेवी SSR, एयरफोर्स, टेक्निकल, हर बुक पढ़ता था, हर बुक। और रात को मम्मी को या भाई को बिठाता था कि मेरे क्वेश्चन पूरा ले, मम्मी या भाई मेरे बैठ के क्वेश्चन पूरे पूछते थे, छोटा भाई। तो मैं जैसे उसने क्वेश्चन पूछे, एक मैं टारगेट डिसाइड कर लेता कि हाँ मेरे को 50 क्वेश्चन आज कंप्लीट करना है, तो करना है, कुछ भी करके याद करता, शाम को और टेस्ट देता। अब मैं किधर कम पड़ा हूँ, आज मैंने 10 चैप्टर किया, कल मैं आज उस 10 चैप्टर का रिविजन करूँगा, कल उसका टेस्ट दूंगा, कल वापस 10 चैप्टर करूँगा, उसका भी टेस्ट दूंगा, और परसों जो 20 चैप्टर किए उसका प्रिपरेशन वापस एक बार करूँगा। ये मैंने अपना स्टडी शेड्यूल बांध दिया था जीवन। और जब मालूम पड़ा कि अब मेरा पेपर है करके, उसमें कोइंसिडेंस ऐसा भी था कि मेरा पेपर कल है, और मेरे को रात को 8:30 बजे एक आदमी आके बोलता कि 3.5 लाख रुपये में मैं तेरे को 50 क्वेश्चन में से 35 क्वेश्चन दूंगा, एंड उसके वो पेपर में आने वाले। मैं बोला ठीक है, एक काम करो, आप मेरे क्वेश्चन दो, मैं आपको 4 लाख रुपये दे दूँ। पर मेरे को क्वेश्चन पहले नहीं बोला, जिस दिन मेरा मेरिट लिस्ट में नाम आएगा मैं 4 लाख रुपये आपको दूँगा। तो उसके बाद ऐसे ही निगलेक्ट की और छोड़ दिया। मेरे को कॉन्फिडेंस था कि थोड़ा बहुत तो मेरे को आते ही होगा, इतना तो नहीं है, फेल तो फेल बोला, कोई दिक्कत नहीं, अगली बार वापस करेंगे, नसीब में होगी तो वर्किंग मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। अगले दिन देखा 50 क्वेश्चन में से 39 क्वेश्चन आँख बंद करके दे दी मैंने। ऐसी पढ़ाई की थी, मैथ्स से लेकर हर एक चीज़, आधे घंटे के अंदर मैंने पूरे क्वेश्चन दे दिए थे लिख के। बस मेरा 40 जो क्वेश्चन था मेरे को उसमें डाउट था, और नेगेटिव मार्किंग भी होती है, इसलिए मैंने 40 अटेम्प्ट किया, बस एक का रिस्क लिया और पेपर दे दिया। भगवान का नाम लिया, पेपर दे दिया, उठ के चला गया। और जब मेरिट लिस्ट में नाम आया, देख रहा हूँ ऑल ओवर 5,500 में से छक्के 850, 850 में से 750, 750 बंदों में मैंने 37 रैंकिंग उस टाइम पे आई थी। आप देशवासियों को क्या उम्मीद करते हैं कि वे सैन्य सेवाओं के बारे में किस तरह से समझें? देशवासियों से क्या उम्मीद करते हैं कि वे सैन्य सेवाओं से किस तरह समझें? अभी ये जो क्वेश्चन है ये डिपेंड करता है आदमी पे। एक्चुअल में देखा जाए, मैं बहुत बार ऐसे देखा है, मैं खुद कैंटीन जाता हूँ, कहीं मुंबई साइड जाता हूँ, छुट्टी पे आता हूँ। एक टाइम का कोइंसिडेंस था मेरे साथ, मैं जा रहा हूँ मुंबई साइड घूमने लोकल ट्रेन से, एक पैरा कमांडो मेरी उसी बोगी में था, वो यूनिफॉर्म में था, वो उसकी कोलाबा में शायद से ड्यूटी थी, वो यूनिफॉर्म में था। वो पूरा रास्ता कल्याण से लेके मुंबई तक खड़ा होके गया, उसे किसी ने सीट नहीं दी थी। अब ऐसे टाइम पे लोगों से क्या ये करें, लोगों को बस एक दिन नज़र आता है जिस दिन कोई सैनिक शहीद होता है ना अपने आसपास का, जैसे कोई कल्याण डोंबिवली का हो गया, उस दिन देशवासियों के मन में बहुत देशभक्ति आती है, पर बाकी टाइम पे उनके मन में नहीं आती देशभक्ति। बाकी टाइम पे उन्हें बस पॉलिटिशियंस और ये सब दिखता है। मेरे कोई दिक्कत नहीं, आप करो, आपको अच्छा लगता है पॉलिटिक्स, आप पॉलिटिक्स भी करो, पर जहाँ जिसको रिस्पेक्ट देना चाहिए, जहाँ जो डिज़र्व करता है उसको वो रिस्पेक्ट दो, समझ लो।
ये आदमी पे डिपेंड करता है। जैसे देखा जाए तो आजकल की जो पीढ़ी है उनको सब दिखा हुआ अच्छा लगता है कि हाँ ये इसके पास स्कॉर्पियो है, इसके पास फॉर्च्यूनर, इसके साथ घूमो, समझ रहे हो। पर आप ये नहीं सोच रहे कि आप ऐसा कुछ तो करो कि आपके उस स्कॉर्पियो के ऊपर लाल दिया लग जाए, हाँ, आपकी गाड़ी के आगे स्टार्स लग जाए। लोग ये नहीं सोचते, पर आप ये सोचते हो कि नहीं मैं स्टार वाली गाड़ी वाले के बंदे के साथ घूमता हूँ। अगर मेरी गाड़ी को स्टार लगते, नंबर प्लेट ही स्टार की बात करो, जो बहुत हाई लेवल फॉर्मेशन होती है स्टार की, ब्रिगेडियर, कर्नल को तक नहीं लगती है, ब्रिगेडियर, लेफ्टिनेंट कर्नल, मेजर कर्नल, इस रैंकिंग को लगती है स्टार। जब उनकी गाड़ियाँ मूवमेंट होती है ना, पूरा रोड खाली होता है, जो पॉलिटिक्स के लिए भी नहीं किया जाता है। पर आजकल की पीढ़ियों को क्या, वो अच्छे लगते हैं। खुद ऐसा बनो ना कि मैं उस गाड़ी में घूमूँ और मेरे पीछे लोग घूमें, खुद को ऐसा प्रिपेयर करो। आप कौन सी गन्स और मिसाइल से डील करते हैं? आर्मी एयर डिफेंस एक आर्मी का सबसे टेक्निकल डिपार्टमेंट है, जिसमें बहुत सारी गन्स आती है। एंटी एयरक्राफ्ट गन्स में जितनी भी आती है, जैसे चिल्का हो गई, चिल्का बोलते हैं जैसे, तो 4 बैरल एंटी एयरक्राफ्ट गन है, वो टैंक माउंटेड गन है पूरी। जैसे मेरी ZU, जिस गन का मैं ऑपरेटर हूँ, ZU गन, विनस्ती गुत्सुनो का 23 mm के ट्विन बैरल गन, उसका रेट ऑफ फायर 1600 से 2000, 1600 to 2000 राउंड पर मिनट बोथ बैरल। मतलब सोच लो, 1 मिनट में उस 2000 राउंड फायर कर रही है। अगर स्लो मोशन में अगर किया जाए, उसको डिवाइड किया जाए, तो 1 सेकेंड में वो बैरल 17 राउंड फायर कर रहा है। 1 सेकेंड में 17 बार। मतलब वो पीछे से राउंड लेगा, चेंबर में ब्लॉक करेगा, फायरिंग पिन चोट मारेगी, गैस प्रोड्यूस होगी, राउंड आगे जाएगा, खाली केस वापस इजेक्ट करेगा 1 सेकेंड में 17 टाइम्स। तो अपने पास इतने टेक्नोलॉजी बढ़ गई है। आकाश, पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, ये मिसाइल्स है। अब इसमें से जो आकाश मिसाइल है, वो इंडियन आर्मी की एयर डिफेंस, आर्मी एयर डिफेंस, वो डील करती है इसके साथ। अगर इसकी ज़रूरत पड़ी तो ये आर्मी एयर डिफेंस आकाश मिसाइल को फायर करेगी। कहीं एडी प्रोटेक्शन देना है तो ZU गन, ये डिपेंड करता है कि लोकेशन कैसी है, हमें किसको प्रोटेक्शन है, उस हिसाब से गन्स लगती है। जैसे L70, QF L70, ये सारी रशियन मेड है। टंगुस्का, ओसा AK, ये सारी मिसाइल्स और गन्स के नाम है। हम इससे पूरा डील करते हैं, पूरी ट्रेनिंग इस पे चलती है हमारी। ZU गन के टेक्निकल्स के बारे में आप कुछ बताएं। ZU गन का, ZU गन एक एंटी एयरक्राफ्ट ट्विन बैरल लाइट वेट गन है, जो कहीं पे भी आसानी से लेके जा सकते हैं। लाइट AD और AD में यही डिफरेंस है। AD में हेवी वेपन्स आते हैं और लाइट में, लाइट मतलब नाम में ही उसके समझ लो कि लाइट है करके, लाइट है। ये सबसे बेस्ट गन में बोला जाए तो सबसे बेस्ट है। ये एयर रोल में भी ये यूज़ की जाती है और ये ग्राउंड अटैक में भी बहुत सक्सेसफुल है। ये सामने टारगेट को 5 किलोमीटर तक एंगेज कर सकती है। ये एक्चुअली देखा जाए, ये टैंक जो होते हैं, जैसे घाटा सर्कल पे देखे होंगे टैंक, इसके जो चेन है उसको तोड़ने के लिए यूज़ किया जाता है। इसके जो राउंड्स है, राउंड्स में इसके टाइप्स होते हैं, HE राउंड, AP राउंड, HE AP DC। HE जो होता है वो हाई एक्सप्लोसिव होता है, जो टारगेट को लगते ही खुद भी डैमेज होता है और टारगेट को भी डैमेज करता है। HE हाई एक्सप्लोसिव, इसके अंदर बारूद भरा जाता है। और जो AP राउंड होता है वो आर्मर पियर्सिंग, जो आर्मर होता है लोहा, 20 mm तक के लोहे को ये शील्ड को फाड़ सकता है, उसके लिए यूज़ किया जाता है AP राउंड। और DC जो होता है डी कॉपरिंग, अभी बैरल कंटिन्यूस यूज़ हो रहा है, उसके अंदर से कंटिन्यू फायरिंग हो रही है और उसके अंदर कार्बन जमा हो रहा है। तो DC राउंड वही करता है कि DC राउंड पूरी गंदगी लेके साफ हो जाता है, तो उसके लिए अच्छी सी क्लीन हो जाती है बैरल और फायरिंग में कोई इफेक्ट नहीं आता। ये बहुत बेस्ट गन है देखा जाए। गाड़ी के पीछे टो होके, यूट्यूब हो तो इसमें हम वीडियो भी देख सकते हैं, उसके वीडियोस है बहुत सारे हैं AD के बारे में। आर्मी में AAD ब्रांच क्या है, उसके बारे में कुछ बताइए। AD ब्रांच मतलब यही एंटी एयरक्राफ्ट, पूरा जितना भी एंटी एयरक्राफ्ट में जितना भी आता है, मतलब जहाँ भी AD प्रोटेक्शन देनी है, क्या नहीं सर?
क्या क्वेश्चन था? एडी ब्रांच। आर्मी एयर डिफेंस। आर्मी एयर डिफेंस का पहला नाम था एडीए, आर्मी डिफेंस आर्टिलरी। जो आर्टिलरी जो ओफर्स वॉर ऑफ गॉड ऑफ वॉर इसके नाम से जाना जाता है आर्टिलरी, ये उसका नाम था। पर 1997 में ये अलग कर दिया क्योंकि एक ही जगह पर बहुत सारे वेपन्स आ गए और रिक्रूट्स को इतना ट्रेनिंग के लिए तकलीफ होने लगी कि बहुत सारा अभी इतने सारे लड़कों को रखेंगे कहाँ, उनको ट्रेनिंग कैसे देंगे, ग्राउंड भी उस हिसाब से खाली होना चाहिए। तो इसलिए उसको उस टाइम पे अलग कर दिया, वो शिफ्ट कर दिया उड़ीसा में। उड़ीसा में भी शिफ्ट करने का कारण ये है, जहाँ पे भी अपने इंडिया में जहाँ पे भी जो अनडेवलप एरिया थे उसको डेवलपमेंट अगर दिलानी हो तो उधर एडी यूनिट भेज देते, मतलब एडी मतलब कोई भी आर्मी यूनिट भेज देते। उससे क्या होता है, आर्मी की यूनिट चली गई, एक विलेज है, कुछ नहीं है, दूर दूर तक कुछ नहीं है, तो इसके साइड में कहीं तो एक लोकेशन मिल जाएगी आर्मी की तो वहाँ इस्टेब्लिश हो जाएगी। यूनिट आ गई तो उधर एम्यूनेशन आना है, लाइट आनी है, व्हीकल्स आने हैं, वॉर की पूरी सामान आना है, राशन आना है, तो क्या होगा, रोड आएगा, रोड बनेगा, सरकार रोड बना के देगी, इलेक्ट्रिसिटी आएगी, इलेक्ट्रिसिटी आएगी, फैसिलिटीज़ बढ़ेगी, फैसिलिटीज़ बढ़ेगी, लोग वहाँ रहने के लिए आएंगे, घर बनेंगे, मार्केट बनेंगे, घर बनेंगे। इससे क्या हुआ, वो जो धीरे धीरे जो रूरल एरिया था वो धीरे धीरे सिटी में उससे आर्मी को भी फायदा है, आर्मी को यूज करने के लिए, पर जो फायदा जो मिला था वो सिविलियंस को भी हुआ। आर्मी के उसे इतना सब कुछ मिला, लाइट मिला, बहुत सा कम है। आज के डेट में भी उड़ीसा में ऐसी कंडीशन है कि लोगों को कपड़े नहीं पहनने के लिए, आज के डेट में 2022 में भी लोगों के पास कपड़े नहीं, जो बूढ़े ज़माने के लोग कपड़े पहनते नहीं, उन्हें आदत नहीं है कपड़ों, इतना रूरल एरिया था, उसको डेवलप करने के लिए आर्मी उधर भेजा गया था उस टाइम पे कि तुम जाओ उधर, कम से कम डेवलपमेंट होगी। आज की डेट में वहाँ कोई सी चीज़ ऐसी नहीं है जो अवेलेबल नहीं, लाइट, रोड, हाईवे, ऐसे ऐसे हाईवे अलाउ पूरे हैं कि कुछ भी वॉर हुआ आपको 6 घंटे के अंदर रेडी होना है। तो आर्मी एयर डिफेंस इस हिसाब से काम करती है। आपको कुछ क्वेश्चन होगा कैसे वर्क करते हैं कुछ, वो भी इसी में कवर करते थे। जैसे आर्मी एयर डिफेंस एक लड़ाई लग गई, आज के डेट में टेक्निकल वॉर बहुत की जाती है। पहले के टाइम पे क्या होता था कि जाओ सीधा राइफल से दुश्मन को मार के आते, पर आज की डेट में अगर मेरे को सरप्राइज चाहिए, मेरे को इसको हर्ट करना है, मैं उधर से मारूंगा ऑडिटोरियम के गेट से, तो इसको पत्थर लगेगा या पास से इसको ज़्यादा लगेगा, पास से ज़्यादा लगेगा। अभी टेक्निकल पूरा जितना भी हो गया टेक्नोलॉजी आ गई, पूरा टेक्नोलॉजी आ गई है, तो उससे क्या हो, आदमी अपने सीट पे बैठ के कंप्यूटर से यूज करके इधर से बैठ के पाकिस्तान उड़ा सकते हैं। नील देश एक्चुअली बोला जाए तो नील देश, सिटी का नाम नहीं ले सकते, नील देश बोलते हैं, लाल देश है नील देश के हिसाब से बोलते हैं। तो एक नील देश को अगर लाल देश को उड़ाना है तो यहाँ से बैठे बैठे मिसाइल छोड़ देगा, गाइडेड मिसाइल। तो इससे डील करने के लिए आर्मी एयर डिफेंस को बीच में नया बनाया गया। तो आर्मी एयर डिफेंस क्या करती है, जैसे कोई लड़ाई है, लड़ाई लग गई तो रोड है, जो मेन रोड है जो लिंकेज करता है, जैसे अपने कल्याण डोंबिवली का जो मेन रोड है कौन सा है जो लिंकेज करता है, पत्री पुल, जानते हो सर? अगर डोंबिवली में लड़ाई लग गई तो एम्यूनिशन हमें कहाँ से आएगा, पत्री पुल से ही आएगा। समझ लो कि हमारा एम्यूनिशन सारा कल्याण में। तो जो दुश्मन है वो सबसे पहले क्या सोचेगा, इसकी जो रीढ़ की हड्डी है, जिसका मेन लिंकेज है, इसकी जो पावर है वही तोड़ देते हैं। तो क्या तोड़ने की कोशिश कर, रोड है, ब्रिज है, कम से कम समय में जल्दी पहुंचने वाली चीज क्या है, बाय एयरक्राफ्ट, रनवे, रनवेज भी आता है इसके अंदर। अभी कहीं लड़ाई लग गई, सबसे ज़्यादा बैकअप किसका आता है, एयरफोर्स के बैकअप के लिए रुकते हैं कि एयरफोर्स का बैकअप आएगा तब हम आगे काम करेंगे, कि ऊपर से एयर अटैक अपने हो रहा है तो हमें कोई डर नहीं है कि अपने एयरक्राफ्ट ऊपर उड़ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं नीचे जाके उधर ब्लास्ट करके आ सकते हैं। तो आर्मी एयर डिफेंस में अगर जैसे लड़ाई लग गई तो टास्क दिया जाता है कि ये रोड है, ये VAVPs है, मतलब वल्नरेबल एरिया, वल्नरेबल पॉइंट। जो पॉइंट होता है छोटा होता है, 1 किलोमीटर बाय 1 किलोमीटर का होता है पॉइंट, 1 बाय 1। और जो एरिया होता है
वो 3x3 का होता है, तो इसके हिसाब से गन बांट दी जाती है। अगर पॉइंट है तो एक ट्रूप बहुत है, एक ट्रूप मतलब 4 गन्स आ गई। तो जैसे ये रोड है, समझ लो ब्रिज है, कुछ भी है, जो मेन लिंकेज है, इसको एडी बहुत इंपॉर्टेंट है, वल्नरेबल पॉइंट है ये, जो बहुत सेंसिटिव है, तो इसको एडी प्रोटेक्शन देना है। तो एक गन यहाँ डिप्लॉय हो जाएगी, एक गन यहाँ डिप्लॉय हो जाएगी, एक गन इधर और एक गन इधर। इस हिसाब से अपने हिसाब से चारों हाथ बांट लेते हैं। ये 360 हमें पूरा एडी प्रोटेक्शन देना है इसे, तो इसे 4 हिस्सों में बांट लेते हैं। ये गन यहाँ से यहाँ तक, ये गन यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, पूरी गन अपने जगह से बैठ के रिकवर कर रही है। जैसे मेरे को यहाँ फायर कर रहा है, इतने पैसे में, पीछे मेरा वीएनईटीज है, मेरे लोग हैं पीछे, तो मैं पीछे फायर नहीं कर सकता, मेरे को अपनी गन पीछे भी लेके नहीं जानी, मेरे को अपनी गन बस इतने एरिया में फायर करनी है। तो हम क्या करते हैं, आर्क लगा लेते हैं, टैब आर्क जो दिया गया है पूरा 360 डिवाइड कर लेते हैं हम, इस हिसाब से वो पूरा एरिया के हिसाब से डिवाइड कर लेते हैं। कोई बीच में ऑब्स्टेकल्स तो नहीं आ रहा, कोई पहाड़ तो नहीं आ रहा, कोई बिल्डिंग तो नहीं आ रहा, और उस हिसाब से एडी गन्स पूरी डिप्लॉय कर देते हैं। जैसे भूत मूवी में देखा होगा, भूत मूवी में भी अच्छे से दिखाया है, L70 गन ने उसमें बहुत बड़ा रोल यूज़ किया है, जो अजय देवगन अकेला चलाते हैं। उस गन को चलाने के लिए 6 बंदों की डेथ लगती है। उस L70 गन को चलाने के लिए 6 बंदों की डेथ लगती है, उसमें अजय देवगन अकेला चला रहा है, वो हीरो है, वो कुछ भी कर सकता है। और जो ZU गन है उसको चलाने के लिए 5 बंदे लगते हैं, 5 चाहिए तो चाहिए। और ये तो जैसे मैं था गलवान में, जैसे मैं गलवान में था तो उधर 1.5 महीने के लिए मैं था, तो उधर जो एक आर्मर्ड का जो एक रेजिमेंट था, ब्रिगेड था, एक रेजिमेंट के अंदर 650 के आसपास लोग आते हैं। जैसे स्कूल है, अंदर एक नफरी होती है काउंटेड, हाँ इतनी सीट्स खाली, वैसे एक रेजिमेंट के अंदर एक पर्टिकुलर सीट्स होते हैं, वेपन्स के हिसाब से कर लिया जाता है कि हाँ मेरे को इस ऑपरेशन के लिए इतने बंदे चाहिए, तो पूरों के ऑलमोस्ट नफरी 650 के आसपास होती है। वो डिपेंड करता है, वो हर एक रेजिमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि किसकी कितनी है। तो वैसे जैसे हमारे रेजिमेंट में 650 to 700 की नफरी होती है। तो क्या कह रहा था, हाँ, तो एक यूनिट हो गई, और वैसे 4 रेजिमेंट मिलकर एक ब्रिगेड बनती है, एक ब्रिगेड बनती है। तो ब्रिगेड बहुत बड़ा, तो पूरा जो था आर्मर का एडी था, ब्रिगेड था, तो उसको हम एडी प्रोटेक्शन देते थे, क्योंकि वो गलवान के पास था। अगर चाइना को वॉर करना है तो सबसे पहले क्या करेगा, आर्मर्ड अगर एक बार चला गया मैदान में, लड़ाई के मैदान में, वो सब कुछ देखता है, पूरा तबाही मचा के आता है। सबसे खतरनाक अगर देखा जाए तो वो आर्मर्ड है, दुश्मन के एरिया में घुस के फायर करके आता है, उसको किसी बात का डर नहीं, ना उसको तोड़ सकते ना फोड़ सकते ना कुछ। जब तक उस पर एक ही टाइम पे हम 100 फायर करते तब तक वो टूटता नहीं, तो उसको हम एडी प्रोटेक्शन देते थे। बहुत सेंसिटिव एरिया था वो। जैसे हमारे इधर बहुत सारे पॉइंट्स हैं, अभी इसमें तो नहीं बोल सकता मैं किस किस को हम प्रोटेक्शन देते हैं उधर, ये क्लिप कट करना, ठीक है। जैसे करके है, ये भी के पास में था, मेरी इधर से बस 6 किलोमीटर दूर था, हम कुछ नहीं कर पाए। ऊपर उसका ये आ गया, ड्रोन आ जाते, हम अपना ड्रोन भेजते, रोज का चलता ही रहता है उनका, वो भेजते हम भी भेजते, पेट्रोलिंग चलती है, एयर पेट्रोलिंग। रोज शाम को अगर उन्होंने 2 एयरक्राफ्ट अपने उड़ा दिए पेट्रोलिंग के लिए। पेट्रोलिंग क्यों की जाती है, जैसे अगर कोई चीज़ बंद है उधर जाएगी। कारगिल का लड़ाई इसी वजह से हुआ था, ठंड की वजह से हम सारे पीछे आ गए, भी बोले हम भी पीछे चल जाते, कोई नहीं आता था, तो इसका फायदा लिया। उस टाइम पे ठंड के टाइम पे उधर पूरा अपना कब्जा ले लिया था। इस वजह से कारगिल की लड़ाई हुई, इस वजह से अब उधर सारे पोस्टें बना दी है, पता है ना। तो हम भी जहाँ पे थे बहुत सेंसिटिव एरिया था, तो हमें पेट्रोलिंग के लिए जाना पड़ता था, और एयर पेट्रोलिंग भी होती है। जब एयरक्राफ्ट उड़ता है, कोई 2 एयरक्राफ्ट उड़ा दिया, इंडिया के पास इतनी पावर है 4 उड़ाता है, हम भी कम नहीं है।
वो 2 उड़ाए, हम 4 उड़ाते, हम 6 उड़ाते हैं, कुछ नहीं करते, बस पेट्रोलिंग करते हैं, वो भी देखते हैं अपनी पावर। अपने जो CDS थे, इनकी अभी डेथ हो गई है, बिपिन रावत, इतना पावरफुल आदमी था, उन्होंने IL-76 बॉर्डर से घुमा के लाया था। IL-76 जो लड़ाकू विमान नहीं है, जो लड़ाई नहीं कर सकता, जिसके पास कोई पावर नहीं कि वो जाके उधर बॉम्ब ब्लास्ट करता है, कुछ करता है, बस वो ट्रांसपोर्टर विमान है। एक लगेज को एक A पॉइंट से B पॉइंट तक लेके जा सकता है, उधर छोड़ के लेके आ सकता है, बस उसकी इतनी कैपेसिटी। पर बिपिन रावत सर के पास इतनी पावर थी, इतने गट्स थे, वो बॉर्डर से IL-76 उड़ा के लेके आते। अब अपने पास ऐसे ऐसे हीरो है, और आजकल की पीढ़ी को क्या लगता है, हीरो अक्षय कुमार, शाहरुख खान, ये लगते हैं। आपका आर्मी में डेली रूटीन क्या है? डेली रूटीन डिपेंड करता है वो, जैसे उठना तो नहीं सबको, 5:30 बजे तक अपना उठ जाओ, रेडी हो जाओ सुबह सुबह। अगर संडे हो तो फुल हॉलीडे होता है, वो डिपेंड करता है कि अगर फुल हॉलीडे है और नसीब में नींद लिखी है तो नींद मिलेगी, और नहीं लिखी है तो तेरी ड्यूटी लगेगी, या कहीं ना कहीं तेरे को काम के लिए जाना पड़ेगा संडे के दिन। और पूरी एक वीक पूरा मेहनत करो, और एक बंदा संडे की राह देखता है, और उस संडे के दिन भी अगर उसकी नसीब में अगर ड्यूटी लिखी है तो क्या ही कहना अब उसके लिए। तो वही सुबह उठना, अगर जैसे डिटेलमेंट है, कहीं ऑफिस में डिटेल है तो ऑफिस वर्क है, या कहीं जनरल ड्यूटीज़ है, जैसे अभी कोई दूसरा तो आने वाला है नहीं काम करने के लिए, केरोसिन की ज़रूरत लगती है उधर। लेह में सबसे ज़्यादा ग्लेशियर साइड जहाँ बर्फीले इलाके, उधर केरोसिन की बहुत ज़रूरत लगती है। इधर हमें केरोसिन की वैल्यू नहीं पता, पर एक्चुअल में देखा जाए केरोसिन की वैल्यू उधर मालूम पड़ती है जहाँ ठंड है। देखा जाए ना, इतना केरोसिन है अपने लेह में, इंडिया के पास इतनी पावर है, इतना उन्होंने डेवलप कर रखा है लेह में, कि अगर आज लड़ाई लग जाए, सारे ब्रिज टूट जाए, सारे रोड टूट जाए, फिर भी अपना इंडिया अगले 5 साल तक इंडियन आर्मी को केरोसिन, डीजल, पेट्रोल, CNG, LPG प्रोवाइड कर सकती है अगले 5 साल तक। इतनी कैपेसिटी उन्होंने तैयार करके रखी है। हम लोग जब जाते हैं ना, हमारा छोटा फ़ोन भी हमें अलाउड नहीं अंदर लेके जाने के लिए, एक ऐसी नॉर्मल पानी की बोतल भी अलाउड नहीं करते अंदर लेके जाने के लिए, इतनी उधर सिक्योरिटी है। सोच लो अगले 5 साल तक वो केरोसिन, पूरे इंडियन आर्मी को केरोसिन, खाने पीने के लिए LPG सब प्रोवाइड कर सकती है, इतनी पावर है उसके पास। तो केरोसिन लाना है, मेरा नंबर है तो मैं जाऊँगा, मेरे कलीग का नंबर है तो वो जाएगा। और कहीं राशन लाना है, राशन भी तो ख़त्म होगा, खाना हमें ही है तो हमें ही लाना है, कोई बाहर का आएगा नहीं। अपना सुबह उठो, फ्रेश हो, रूम मेंटेनेंस करो, जो डिटेलमेंट है वो पूरी करो, और शाम को रिटर्न। ड्यूटी हो तो ड्यूटी पे चले जाओ। इसमें भी लेट हो जाए, कहीं से केरोसिन लाते हुए लेट हो जाए, कहीं से कुछ लाते हुए लेट हो जाए, 8 बज जाए, 9 बज जाए, साथ वाले को बता दो कि भाई मैं इधर हूँ, मेरी ड्यूटी थोड़ी देर, थर्ड ड्यूटी लगा देना, लास्ट ड्यूटी कोई नहीं, मैं 10 to 12 दे दूँगा। 8 बजे आओ, खाना खाओ, 1 घंटा रेस्ट करो, 10 to 12 वापस ड्यूटी पे खड़े हो जाओ। तो ये शेड्यूल होता है। अगर देखा जाए तो नसीब में हो तो रेस्ट ही नहीं मिलता। मतलब मेरे साथ खुद ऐसे दिन गए कि मैं पूरे 24 आवर्स में से बस 2 घंटा जूता खोला है। जब जूते खुलता है ना, 22 घंटे बाद जब जूता खुलता है ना, तब ऐसा रिलैक्स फील होता है कि पूछो मत। सोना भी है तो भी ऐसे जूते पहन के सोने, पता नहीं कहाँ से किसी ने बुला लिया, बाहर कुछ हो जाए, हम ड्यूटी में, हम बाकी भी एक बंदा ड्यूटी दे रहे हैं, हम बाकी रेस्ट कर रहे हैं, नहीं होता है उस टाइम पे। बहुत मुश्किल है, वैसे देखा जाए तो बहुत मुश्किल है। 2 घंटा काटना आसान नहीं है। ऐसे तो 2 घंटे टाइम पास में निकल जाते हैं, और उस टाइम पे 2 घंटा बात किससे करोगे? ना फ़ोन यूज़ कर सकते हैं, फ़ोन यूज़ करोगे नींद आएगी, घर पे बात करोगे कोई देख लेगा अपना ही, अच्छा नहीं लगता। कोई सीनियर कोई बोल दे, टुकाई कर दे, ये अच्छा नहीं लगता। और खास करके फौजियों को तो ये बिल्कुल सहन नहीं होता कि कोई सीनियर कुछ बोल दे। वो हमेशा यही सोच में पड़ता है कि कोई सीनियर मेरी टुकाई ना करे। हर एक जगह से, ड्रेस से लेके पूरा डिसिप्लिन, ड्यूटी में खास करके ध्यान दिया जाता है। क्योंकि क्या हो, कोई हेडफोन लगाते सो जाए, कुछ हो जाए, और उस टाइम पे आपकी ड्यूटी हो तो फंसोगे आप। चलो नुकसान हो गया वो अलग बात है, कोई चोरी हो गई वो अलग बात है, आपका ही गला काट के ले गया तो वो कोई रिटर्न ला सकता है? नहीं ला सकता।
आपके टीचर्स का आपके जीवन में क्या योगदान था? कौन से टीचर्स? अच्छा ये नहीं नहीं, स्कूल के टीचर्स और जूनियर कॉलेज? 3 टीचर्स थे, स्कूल के, लाइफ के और ट्रेनिंग के। स्कूल के टीचर्स का तो बहुत योगदान था। स्कूल के हर एक टीचर्स ने, मेरे को अच्छे से याद है, नेहा टीचर, म्यूज़िक टीचर, रेवती टीचर। रेवती टीचर तो कुछ भी मत, नॉनसेंस, बस रोज मैम से सुनना। पर ये तब लगता है कि हमें कि टीचर्स पागल है, इनको कुछ नहीं पता। सही बात बोलूँ, फ्रैंकली बोल रहा हूँ, उस टाइम पे लड़के सोचते हैं कि इन्हें कुछ नहीं पता। माँ बाप भी हो, वो भी टीचर ही अपने, वो लोग कुछ बोलते कि बेटा ऐसा मत कर, हम ऐसे छोड़ देते कि नहीं क्या सुनना है इनको थोड़ी पता आजकल की लाइफ कैसे है। पर इन लोग की वैल्यू तब मालूम पड़ती है ना जब आप कहीं फेल हो, कभी फेल होके देखना, कभी फेल होके देखना लाइफ में, तब मालूम पड़ेगी कि माँ बाप की वैल्यू क्या है, टीचर्स की वैल्यू क्या है। क्योंकि वो जो बोलते हैं ना, आज मैं इस स्टेज पे बैठा हूँ, मैं जिस रैंक पे हूँ, वो अगर देखा जाए सबने हेल्प किया था। मैं अपना पेमेंट दे रहा हूँ मैम को? नहीं दे रहा। मैम ने अपने फ़ायदे के लिए किया? नहीं, ये एक स्टूडेंट के फ़ायदे के लिए करते कि नहीं हमारा स्टूडेंट होगा, मैम प्राउडली बता सकती है कि हाँ ये मेरा स्टूडेंट था करके। तो हमें यही लगता है कि गलत, कि नहीं मम्मी पापा गलत है, मम्मी पापा हमेशा गलत है। पर ये तब मालूम पड़ता है जब कोई नहीं होता ना। जब मैं ही आर्मी में भर्ती हुआ था, तब दिन भर ट्रेनिंग करो, शाम का खाना बनना है, 4-4 हज़ार लड़के एक साथ ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो जिस दिन लंगर में नंबर पड़ गया, लंगर में मतलब किचन में, हमारे आर्मी लैंग्वेज में लंगर बोलते हैं उसे, लंगर में बन गया, पड़ गया नंबर कि आज मेरा नंबर है, रोटी बनाने जाना है, पूरी बनाने जाना है। जब 6-6 हज़ार पूरी बनानी है और 2 ही बंदे बस 6 हज़ार पूरी बेल रहे, तब मम्मी की याद आती है। नहीं एक्चुअली जब हम इधर कपड़े गंदे करते हैं और मम्मी को धुलने देते, धो ले, बोलो जिसके पास वॉशिंग मशीन हो तो ठीक है, नहीं है। जब पूरा दिन ट्रेनिंग करो, पूरा कपड़े गंदे, 8 पीरियड के 6-7 ड्रेस तो ऐसे ही हो जाते हैं, पूरे दिन गंदे, और वो अगले दिन पहनने भी है, सूखने भी है, दूसरे है अगले दिन पहनने भी है, टाइम भी नहीं है। जब धोते हो ना 8 ड्रेस, घिस घिस के, गंदगी निकल नहीं रही, मिट्टी निकल नहीं रही, तब मम्मी की याद आती है। वैल्यू तब मालूम पड़ती है कि पापा क्या काम करता था अपने लिए, जब हम कमाते हैं। आज जब मैं कमाता हूँ, मैं जब पैसा खर्च करता हूँ फालतू चीज़ों में, तब याद आता है कि नहीं यार, हमने पापा के टाइम पे कितना हम ये करते थे। आज मैं ये चीज़ लेने के लिए भी इतना सोच रहा हूँ। अपने बचपन और अपने स्कूल लाइफ के बारे में वर्णन करें। बचपन तो अच्छे से पता ही है सबको स्कूल लाइफ भी सभी को पता है। हाँ मस्ती, बहुत मस्ती था, कभी सुनना नहीं कुछ, मारा मारी, हमेशा झगड़ा। बस ये इसमें लैब असिस्टेंट मैम की कमी है ज़रा, अगर जो साइंस के लिए थी मेरे को 12th में लैब असिस्टेंट मैम थी ना, हाँ उनकी कमी है। वो उन्होंने तो बहुत हेल्प करी थी। कॉलेज पीरियड में अगर देखा जाए, मेरे को सबसे ज़्यादा हेल्प मेरे को बायो टीचर ने की थी। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन पेपर ला के दिया था, मतलब बहुत समझाते थे, और लैब असिस्टेंट मैम भी बहुत मेरे को समझाते थे। स्कूल टाइम पे इतना नहीं था मैं, पर 11th में मैं फेल हुआ था, 12th में मुझे पास होना था किसी भी कंडीशन में। मेरे को दूसरा कुछ था ही नहीं कि 12th पास होना, अभी फेलियर हुआ हूँ, फेल हुआ हूँ, अभी पूरे लोग सुना रहे, बस इधर उधर से ताने सुनते, सुबह उठो गाली, शाम को सो गाली, खाना खाते हुए गाली, हर जगह गाली पड़ रही। कुछ तो करके दिखाओ यार। तब सोचा कि नहीं कुछ तो करना है। तब टीचर्स लोग ने बहुत हेल्प करी थी, सही में बता रहा हूँ। मेरी टीचर भी नहीं है आज, सबसे फेवरेट टीचर थी मेरी, क्लास टीचर थी अच्छा अच्छा। जैसे कि आपके पिता भी सेना से थे, तो आपने उनसे सेना के लाइफ के बारे में क्या सीखा और आपको उससे क्या मदद मिली सेना के लाइफ में? पापा भी आर्मी में थे, पर कभी इतना पापा और मेरे में डिस्कशन नहीं होता था कि तू आर्मी में ऐसा होता है, आर्मी में वैसा होता है, कभी इतना डिस्कशन नहीं होता था। पर अगर देखा जाए ना, तो मेरे फ्रेंड से पहले मेरे पापा मेरे पहले फ्रेंड है। जिस टाइम पे मैं पढ़ाई करता था रात को, मेरा पापा को अगले दिन ड्यूटी जाना रहता था। यही अभी रिटायर हो गए थे, टोरेंट पावर करके तो कंपनी थी, वहाँ पे काम जॉब के लिए जाते थे। दूसरे दिन सुबह जॉब पे जाना रहता था। फिर भी मेरे पापा रात को अगर देख रहा हूँ कि मैं 1 बजे पढ़ रहा हूँ, 1 बजे जो बैठते थे मेरे पास, सुबह 3 बजे तक मेरे पापा मेरे साथ कंटिन्यूस बैठे, मेरा बुक साइड में रख देते थे खुद हाथ से, और बस मेरे साथ ऐसी बातें, बस गप्पे लड़ाते।
कि उन्हें दिख रहा था कि लड़का कर रहा है, पूरा 100% दे रहा है। मैं देखा जाए ना तो पापा को मैं बहुत ये नेगलेक्ट करता था, मेरे को बिल्कुल पसंद था, पापा मेरी टुकाई करते बार बार, हर बात पे टुकाई, बैठते हुए टुकाई, हेयर कटिंग ऐसा क्यों, कपड़ा तूने ऐसा क्यों पहना, हर जगह टुकाई। पर पापा की वैल्यू मेरे को कब मालूम पड़ी, जिस टाइम पे मैं अपनी आर्मी रैली के लिए गया, मेरी 9th रैली थी, मैं अपने पापा को बोला, पापा इस बार आप मेरे साथ चलो, इस बार मैं आपको प्राउड फील करा के लाऊंगा उधर से, कुछ भी करके। मैं अगले दिन मेरी रैली थी, मेरे को अभी भी याद है, मैं 12 जून को मेरी रैली थी 2019 में, 11 जून को मैंने नंबर लगा लिया था गेट पे, 5,500 बंदे थे, सबसे पहला नंबर लगाया था, और दूसरे दिन सुबह रनिंग थी। इतना नंबर लगाने के बाद भी मेरा 8th बैच में, पूरे रश में, क्राउड में मैं आगे पीछे हो गया। 8th बैच में मैं रनिंग की, रनिंग पास हुआ। रनिंग के टाइम पे भी मैं फेल हो गया था। इस बार कसम से बता रहा हूँ, मैं इस अटेम्प्ट में पास नहीं होने वाला था। पर जो कहते हैं ना, एक लाइफ का मूवी आता है, लाइफ का एक शॉर्ट मूवी कभी कभी तो आता है एक लाइफ में। जब मैं दौड़ रहा था, रनिंग कर रहा था अच्छे से, बहुत आगे था, पूरा पूरा ताकत लगा देता एकदम स्टार्टिंग में, और आगे और खींचना है, 1 किलोमीटर खींचना है मेरे को, एंड्योरेंस मेरा तब तक के लिए रखना है मेरे को, अपनी पूरी एनर्जी स्टैमिना। पर मैं पूरा खींच लिया था स्टार्टिंग में, मेरे को पूरा, मैं धीरे धीरे पीछे हो गया था, 2 नंबर पे था मैं रनिंग में। मैं धीरे धीरे बंदे आगे जा रहे हैं, एक एक बंदा आगे जा रहा है, मैं काउंट कर रहा हूँ, 1 2 3 4 5, काउंट करते करते 45 बंदों ने मेरे को क्रॉस किया। 100 बंदों में से 100 के बैच छोड़ते मेरे को 45 बंदों ने क्रॉस किया। राइट साइड में मेरे ही ड्रिल ग्राउंड आया, जिसमें कसम परेड की जाती है, जो देखते हैं, जिसमें ड्रिल की जाती है पूरी, इसमें अनुशासन सिखाया जाता है, ड्रिल ग्राउंड। उसमें बंदों का आवाज़ सुन के, जोश सुन के, कसम से बता रहा हूँ, मेरे को एक 30 सेकंड की एक मूवी दिख गई थी फ्यूचर की, कि मेरी मम्मी मेरे को मेडल पहना रही है, मेरे पापा उधर खड़े हैं प्राउडली, जो हमारा ब्रिगेडियर है वो पापा को मेडल पहना रहे, कांग्रेस कर रहा है। वो 30 सेकंड में मेरे को पूरी मूवी दिख गई थी कि मैं उधर कसम खा रहा हूँ कि मैं देश का सफाई, आग अग्नि पृथ्वी हर जगह से जाने के लिए तैयार हूँ। 30 सेकंड में मैंने देख लिया था। तब जो मैंने अपनी एनर्जी में बोला, आज तो निखिल तू उधर मर जाके फिनिशिंग लाइन पे चलेगा, पर पापा बाहर खड़े हैं, उनको डीमोटिवेट नहीं करना है, प्राउडली जाना है। जैसे ही क्रॉस किया, धीरे 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 वापस 45 बंदे मेरे को क्रॉस करने में टाइम लग गया बहुत, मेरी जान निकल गई थी। मैं जाके उधर सीधा सो गया था। 10 मिनट मेरे को कुछ नहीं समझा था, मेरा पूरा गला, इंटेस्टाइन मेरा पूरा सूख गया था, पानी मांग रहा था, उधर पानी नहीं मिल रहा। तो पूरा दिन मेरा वैसे गया, पुलअप्स हुए, आगे के फिजिकल टेस्ट हुए, उसके बाद मेरे पूरे इतने, मैंने पूरी ताकत लगा दी थी, मेरे गले से लेके मेरा रिब्स, थाइज, काफ, हर एक चीज़ जाम हो गई थी मेरी। मेरे को चलने के लिए भी नहीं हो रहा था, ऐसी हालत हो गई थी। बस मेरी टेस्ट के टाइम, बस टेस्ट के टाइम पे डॉक्यूमेंटेशन हुआ, रात को 11:30 बज गया। जैसे ही 11:30 बजे गेट के बाहर निकलते निकलते 12 साढ़े 12 के आसपास कुछ तो हो गया था। बहुत से मेरे फ्रेंड्स थे जिनके फादर भी आए थे उनके साथ, पर इतने बंदों में से किसी के फादर गेट पे खड़े नहीं थे कि मेरा लड़का आएगा मैं उसको लूँगा। बस मैंने उतने पापाओं में से अपना पापा देखा जो एक हाथ में पानी का बोतल और एक हाथ में खाने का प्लेट लेके खड़ा था। तब मेरे को बाप का एहसास हुआ कि भाई बाप अपनी लाइफ में क्या वैल्यू करता है। किसी का नहीं था। मैं इतना पापा को भी वो भी भीड़ में एक ही प्लेट खाना मिला, पापा वही लेके खड़े मेरे लिए, उसके अंदर हवा से रेत रूत क्या क्या आके गिरा था पता नहीं, फिर भी मैं उसको खाया। पापा लाए थे इतने पैर से, इसलिए मैं खाया, पापा ने भी खाया, मैंने भी खाया। अगले दिन पापा को पता है लड़का थक गया है, हमें उधर रहने के लिए क्वार्टर नहीं मिला, ना कुछ होटल मिला, क्योंकि बहुत रूरल एरिया था। उड़ीसा जो गोलाबंदा करके गाँव है, बहुत रूरल एरिया है अभी भी। तो एक मंदिर के ऊपर हम सो रहे थे, बहुत से लोग उधर ही सो रहे थे मंदिर के ऊपर, कहीं अगल बगल कहीं जगह मिले, कोई जंगल में कहीं कहीं, तो हमें मंदिर के ऊपर जगह मिली थी, हम मंदिर के ऊपर सोए थे। रात के मच्छर काट रहे थे 12:30-1 बजे। मेरे को उस दिन मच्छर नहीं काट रहे थे। मैं जब 1:30 बजे उठ के देखा कि मेरे को आज मच्छर क्यों नहीं काट रहे, तो मेरे पापा टॉवेल से मेरे को हवा डाल रहे थे। पूरी रात भर मेरा पापा मेरे को टॉवेल से हवा डाल रहा था, पर मैं फिर भी वो देख के मैं चुपचाप सो गया। मैं अपने पापा को कभी लाइफ में हग नहीं किया, कभी लाइफ में हग नहीं किया, या गले मिला, या प्यार से उन्हें बोला मैं कुछ। जिस दिन 8 दिन मैंने री मेडिकल में निकाले कि मैं कल मेडिकल पास होऊंगा, परसों मेडिकल पास होगा,
कुछ खाने की फैसिलिटीज़ थी नहीं उधर की। जो सुबह एक ब्रेकफास्ट ही मिलता था, छोले भटूरे, सबसे बेस्ट वही लगता था। वो दोपहर तक तो टिकता नहीं था, गर्मी थी, ख़राब हो जाता। सुबह ही एक बार ब्रेकफास्ट अच्छे से करना, बाकी 8 दिन मेरे और मेरे पापा ने बिस्किट पे गुजारते वहाँ पे, क्योंकि सिटी वहाँ से बहुत दूर थी और मेडिकल से आते आते शाम के 4 बज जाते, तो जाना आना इम्पॉसिबल था। जाना वापस आना, वापस कल जाना है। 8 दिन हमने बिस्किट पे उतारे थे। जिस टाइम पे री मेडिकल का अनाउंसमेंट किया कि भाई ये 70 बंदे थे हम कुछ पे जो री मेडिकल में फेल हुए थे, उसमें से 22 बंदे कुछ पे सिलेक्ट हुए थे, वापस पास हुए थे। जब उसने मेरा इंडेक्स नंबर लिया, इंडेक्स नंबर 1240, तो मेरे को कुछ मालूम नहीं पड़ रहा था कि मैं कहाँ हूँ, क्या कर रहा हूँ, पता नहीं। मेरे आँख से अपने आप पानी आ रहा है, मैं हंस रहा हूँ। जो मैंने उस टाइम पे एक्सपीरियंस किया, खुशी के आंसू उसे बोलते थे। पापा को हक किया, पापा को पता नहीं पप्पी कितनी ली मैंने, ऐसा पागल हो गया था मैं उस टाइम पे। ये पापा की वैल्यू सही में बहुत होती है। जैसे एक विठल जो भगवान होते हैं, जैसे वो पूरे दुनिया का बोझ लेके एक ईंट पे खड़ा ना, वैसे एक बाप अपने पूरे घर का बोझ लेके ना एक ईंट पे खड़ा होता है। अगर कंपेयर किया जाए ना, एक साइड में विठल और एक साइड में बाप, दोनों को सेम रहती है। एक्चुअली देखा जाए आजकल की पीढ़ी मम्मियों को ज़्यादा प्यार करती है, पापा को कम करते हैं। पर देखा जाए ना, पापा ज़्यादा करता है, पर पापा कभी दिखाता नहीं कि मैंने आपके लिए ये किया वो किया। बच्चे और युवा वर्ग कल्पना जग में एक्शन हीरो को ही अपना आइडल मानते हैं, लेकिन सही मायने में एक सच्चा सिपाही जो जीवन में इतना कष्ट सहता है और जीवन का बलिदान देने के लिए तैयार हो जाता है, उसी सैनिक से बच्चों को प्रेरित होना चाहिए। इस विषय में आपका युवा पीढ़ी को क्या संदेश है? मैं तो ये मानता हूँ कि हर एक बंदे ने, ये पता नहीं मैं कितना ठीक बोल रहा हूँ कितना रॉन्ग बोल रहा हूँ, हर एक बंदे ने एक बार तो लाइफ में फेल होना चाहिए अगर सक्सेसफुल बनना है। तो अगर आपको सक्सेस ऐसी ही मिलते जाए बस अपने लक पे, आपको उसकी वैल्यू नहीं होगी। आप एक बार फेल होकर देखना कभी किसी चीज़ में जो आपको अचीव करनी है। मैं 8 बार फेल हुआ था, एक बार भी नहीं 8 बार, पर मैंने हिम्मत नहीं छोड़ी। मैं अगले दिन वापस जूता पहनता था, रनिंग स्टार्ट, वापस अगले दिन 25 किलोमीटर करना है तो करना है। क्या हुआ, आज नहीं तो कल, मरे थोड़ी है। अरे हाथ पैर है, मरे थोड़ी है। जो मूवी में दिखाते हैं हीरो क्या कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, उन्हें बस दिखावा है कि हाँ हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। मूवी में दिखाया भी है ना कि एक सोल्जर राइफल लेके खड़ा है, देखने में कितना अच्छा लगता है, पर जब वो सोल्जर का आप ड्रेस पहनते हो, ड्रेस का वेट, नीचे शूज़ का वेट, सर को पता है शूज़ का वेट कितना होता है, वो डीएमएस शूज़ का, सर एनसीसी से थे, स्कॉटन गाइड के थे, प्लस बुलेट प्रूफ जैकेट। मेरे को एक बंदा कोई तो बोला था भर्ती होने के बाद भी, ये क्या करेगा, होगा कहीं चौक पे खड़ा रहेगा ड्यूटी देता हुआ, ये बोला था। पर उसे नहीं पता कि वो यूनिफॉर्म पहन के जब 9-9 किलो के प्लेट्स लगते ना, यहाँ पे मेटल प्लेट्स 9-9 किलो के, 9 किलो आगे 9 किलो पीछे, प्लस मैगजीन 4, प्लस राइफल 4 किलो की मैगजीन, 18 केजी वो वेट हो गया, प्लस 90 ग्राम्स के मैगजीन आपके, प्लस हेलमेट। जब पूरी दुनिया का बोझ आप पे रहता है ना, तब मालूम पड़ता है कि ड्यूटी कैसे देनी चाहते, किसे बोलते। तो जो मूवी में दिखाते हैं वो चलो अच्छी चीज़ है। अगर आप मूवी देख रहे हो कोई जिसमें वो कोई बन के दिखा रहा है, कुछ आर्मी ऑफिसर है, आईएएस ऑफिसर है, तो आप उसको देख के मोटिवेट हो, उसको देख के मोटिवेट हो और वो करो, उसके जैसा मत बनो, खुद अपना अलग बनाओ। आप लोग ये मत सोचो कि मेरे को निखिल के जैसा बनना है। कल को मैं खुद बोलता हूँ अरे तू तो वही है ना जिसने मेरा इंटरव्यू लिया था। ये होना चाहिए खुद के अंदर जज्बा कि कल को मेरे टीचर्स लोग प्राउडली बोले कि हाँ मेरा लड़का है। 4 लोगों में खड़े हो तब लगे कि हाँ कोई तो खड़ा है बीच में। अगर आपको नॉलेज नहीं है आप एक साइड में चुपचाप खड़े रहोगे, कभी भी देखना। पर जिसको नॉलेज है ना वो 4 लोगों के बीच में खड़ा होकर एकदम फ्लुएंटली बोलता है, एकदम लीडर होके बोलता है वो। तो आजकल की पीढ़ी को यही सीखना चाहिए कि खुद को डीमोटिवेट मत करो। आपको बाकी डीमोटिवेट कर रहे हो ना, वो आपकी एनर्जी है। यहाँ बहुत से टीचर्स को पता है मैं बहुत गुस्सेल था, एचए मैम को पता है बहुत गुस्सेल था मैं, बहुत सुन के नहीं लेता था मैं किसी की। पर वही गुस्सा है ना मैं ग्राउंड पे निकालता था। 10 पुशअप्स
मेरे को ये ऐसे बोला, मैं और 10 पुशअप मारूंगा। जो अपना गुस्सा है, जो मेरा कमजोरी था, मैं उधर उतारता था। रनिंग करना है, अरे ये बाइक आगे गई मेरे से, मैं बाइक से रेस लगाता था, पागल हो गया था, पागल। अगर कोई चीज़ करना है तो पूरे पागल बन के करो, पूरा पागल बन जाओ उस चीज़ में, तभी सक्सेसफुल हो पाओगे लाइफ में। और सबसे बढ़िया है तो फेलियर, अगर एक्सपीरियंस लेना है तो फेलियर। मेरा खुद छोटा भाई मेरा बढ़कर है, वो 9th पास हो गया, कोविड, 10th पास हो गया, कोविड। मैं बोला अभी 11th में एडमिशन नहीं मिलेगा, बोला, क्योंकि सीईटी के एग्ज़ाम आने वाले थे। सीईटी कैंसिल हो गई, 11th में एडमिशन मिल गया। अभी तो डिक्लेयर कर दिया 11th भी पास करने वाले। और मैं खुद उसका सगा भाई हो के मैं चाहता हूँ कि वो 10th फेल हो जाए, मैं ये चाहता था। क्यों? क्योंकि उसे मालूम पड़ेगा कि फेलियर क्या चीज़ है। जब वो कोई फेलियर से उठेगा ना, तब उसे मालूम पड़ेगा कि हाँ मैंने कुछ तो किया है करके। मैं बहुत दिल से चाहता हूँ कि वो 10th फेल हो जाए, क्योंकि ऐसे पास होने में कोई मतलब नहीं है, कुछ नॉलेज नहीं है ना कुछ है। अगर मैं अपने ट्रेड के बारे में अगर नॉलेज नहीं रखता तो मैं अपने जो हमारा सीनियर होता है, जैसे हमारे में भी गनर हूँ, तो हमारा भी एक नंबर 1 होता है, एक जो सीनियर मोस्ट होता है जिसको गन का पूरा नॉलेज होता है, वो गन पूरी खोल के जोड़ देगा, इतना नॉलेज होता है उसे, हर एक नट का उसका नॉलेज होता है। उसे हम लोग हमारे साइड से नंबर 1 बोलते हैं। जैसे अगर मैं तो नंबर 1 सर, यानी ऐसे नंबर 1 आप कैसे हो, नंबर 1 आप खाना खाए, इस प्रकार से बोलते, क्योंकि वो नंबर 1 है हमारा, हमसे बहुत सीनियर है, उसे नॉलेज है। वो भी चाहता है कि हाँ मेरा बंदा मेरा सीखे, मेरे से कुछ, मेरे से ट्रेड के बारे में पूछे। तो मैं यही चाहता था कि मेरा भाई फेल हो, क्योंकि वो सीखेगा कि अभी फेल हुआ है। रिलेटिव्स के ताने, जो अपने सबसे बेस्ट फ्रेंड होते हैं, जो रिलेटिव्स जो ताने, मेरे को खुद बोलते थे मेरे रिलेटिव्स, ये कुछ नहीं कर पाएगा। और जब रिजल्ट लेके दिखाया ना कि भाई पास हो, हमें तो पता था ये कर पाएगा, हम तो ऐसे ही बोलते थे। ये होता है रिलेटिव्स का सबसे बेस्ट। आज की युवा पीढ़ी को तो मैं बोलूँगा, अगर लाइफ में कुछ करना है, रिलेटिव्स छोड़ दो, बस अपने माँ बाप भाई दोस्त यार छोड़ दो। वो दोस्त देखो, एक ही दोस्त बनाओ पर वो 100 के बराबर होना चाहिए। 50 दोस्त बनाए कोई फायदा नहीं, तेरे 50 लोग तेरे पीछे खड़े, कोई फायदा नहीं। एक ही बंदा रख जो गट्स रखे तेरे साथ हर चीज़ में, लड़ाई में, किसी भी चीज़ में तेरे साथ रहे, ऐसा दोस्त बनाओ। आजकल की युवा पीढ़ी को यही मैं बताना चाहूँगा कि रिलेटिव छोड़ दो, सबसे पहला तो यही करो अगर सक्सेसफुल होना है तो। दुनियादारी छोड़ दो, मतलबी बनो, मतलबी कि नहीं मेरे को करना है, मेरे को पास होना है, बस दूसरे को छोड़ दो यार, मेरे को कुछ तो अचीव करना है, मैं बस अचीव करने के बाद लोग तेरे पीछे आएंगे अपने आप। मतलब ही बन जाओ, सीधा सीधी बात है, सही कहा ना। ट्रेनिंग के बारे में सुनना चाहोगे? ट्रेनिंग कैसे होती है? हाँ, ट्रेनिंग सेशन की शुरुआत ऐसी हुई थी, 13 अगस्त को मेरी रिपोर्टिंग थी उड़ीसा में। उस टाइम पे कोविड का नहीं था कुछ सीन। गेट पे एंट्री की, सबसे पहले तो हमारी बैग चेकिंग कर ली कि कोई बंदा नेल कटर लाया है, छोटी कील लाया है, या कोई ब्लेड रखा है, या कोई मेडिसिन रखा है। जितना भी था सब साइड में, सब डस्टबिन में डंप कर दिया। क्यों? क्योंकि फैमिली को छोड़ने के बाद लड़का डिप्रेशन में चल जाता है। मैं खुद इतना रोया था कि मैं रोते रोते कब सो गया मुझे पता नहीं। मेरी आँख सोलापुर में जब मैं स्टेशन पर पहुंचा तब मेरी आँख खुली थी। मेरा सब मोबाइल ऐसे ही पड़ा, मैं इतना रोया था, इतना रोया था मैं वो समझ नहीं रहा था, मेरे पूरा सब काँप रहा था। जब मैं फैमिली को छोड़ रहा था, मेरी मम्मी पापा को छोड़ रहा था मैं, मेरी मम्मी रो रही है, पापा रो रहे हैं, मेरी मम्मी आरती निकाल रही है, मेरी रो रही है, मेरे को रोना आ रहा है, मेरे को कंट्रोल नहीं हो रहा। आज भी जब मैं छुट्टी से जाता हूँ ना, मेरे को रोने को आता है, मम्मी को देख के रोने को आता है, पता नहीं क्यों। तो बंदा कुछ अपने लेवल पे करना ले, खुद को हार्म ना पहुँचा ले, इसलिए सब ब्लेड ब्लूड सब साइड में कर लेते हैं। आज से मेरा माँ बाप वो सर है जो भी हमारे ऊपर नियुक्त किया जाता है, वो सर हमारा माँ बाप है, गाइड है पूरा। रनिंग करते हुए हमें बैक सर पे, रनिंग करते हुए पूरा रूम तक। धीरे धीरे जैसे ट्रेनिंग चालू हो गई, 8 पीरियड होते, 8 पीरियड सुबह से लेकर शाम तक के, 3 पीरियड पहले ब्रेक के बाद, बाकी के 5 पीरियड। यहाँ पे एक क्लास छूटने के बाद टीचर आती है, बीच में मेरी टीचर आ जाएगी, नेहा टीचर आ जाएगी, आप लोग बैठे रहते आराम से,
नेहा टीचर एक क्लास कंप्लीट करके दूसरे क्लास में आती है, पानी भी पीने का मौका नहीं मिलता होगा कभी कभी तो, नहीं मेरे बच्चों का क्लास है, पर उधर ऐसा नहीं होता। 40 मिनट्स का एक पीरियड होता है, 3 पीरियड लगा दिए सुबह के, समझ लो, एक पीटी, एक ड्रिल, वापस पीटी। तो सुबह जाओ, अपने बैग में पूरे दिन का, पूरे पहली बात तो पूरे शेड्यूल का हिसाब से बुक्स, नोटबुक्स, अपनी यूनिफॉर्म, कैप, बेल्ट, पीटी है अलग यूनिफॉर्म, ड्रिल है अलग यूनिफॉर्म, डब्ल्यूटी है अलग यूनिफॉर्म, डब्ल्यूटी मतलब वेपन ट्रेनिंग, या बीएफसी है अलग यूनिफॉर्म, गन के परेड है अलग यूनिफॉर्म, मतलब 5 यूनिफॉर्म तो कंपलसरी बैग में होने ही है। बैग इतनी सी, यूनिफॉर्म इतने से, और हर एक ड्रेस के साथ अलग अलग जूते हैं। पीटी में स्पोर्ट्स है, ड्रिल में अलग है, डीएमएस अलग है, तो 3 जूते ऐसे लटका लो कहीं ना कहीं, जहाँ जगह मिले उधर बैग में ठूस दो। एक पीरियड कंप्लीट किया पीटी का सुबह, पीटी में जाओ, सुबह कंप्लीट किया पीटी का, 5 मिनट का ब्रेक मिलता है, एक पीरियड टू दूसरा पीरियड में 5 मिनट का, उसके बाद हूटर बच जाता है, बजर बच जाता है, बहुत बड़ा बजर होता है जो पूरे 5 किलोमीटर में फैलता है, इतना बड़ा बजर होता है वो, कि आपका लेक्चर खत्म हो गया और नया चालू हो गया। तो उसमें भी टीचर, जैसे मेरा स्टूडेंट से क्लास कंप्लीट हो गई, उसके बाद वो पूछेगा, 2 मिनट बातें करेगा, 5 मिनट में से 2 मिनट उसने निकाल दिए, उसने खा लिया सर ने जानबूझ के। बच्चे कितने, 3 मिनट, 3 मिनट में आप सारे लड़कों को लो, एक स्क्वाड जो होता है 25 बंदों का एक स्क्वाड होता है, जिसे स्क्वाडन बोलते हैं, स्क्वाड बोलते हैं, या कंपनी बोलते हैं, हर एक सिस्टम में अलग अलग नाम चलते हैं। उन सबको कलेक्ट करो, अपना अपना बैग ढूंढो, उसमें भी बंदे थके हुए होते हैं, कोई पानी का बॉटल उठा के ले जाता है, अपना पानी का बॉटल ढूंढ के लाओ, बैग ढूंढ के लाओ, सब एक साथ लाइनअप हो जाओ इंक्रीज में, और उसके बाद 3 मिनट के अंदर उस ग्राउंड पे जाओ, उधर जाके जाते जाते बजर बच जाता है, जब तक ग्राउंड से निकल तब तक बजर बच गया, बजर बच गया, क्लास में लेट। ड्रिल का है, राइफल लेनी है, अब 25 बंदों के लिए 25 राइफल कोर्ट से आउट करानी है, सबका साइन लेना है, राइफल लेनी है, वापस उधर जाना है, राइफल रखनी है, राइफल में मिट्टी भी नहीं जानी चाहिए, और सारी मिट्टी होती है। रख दिया, बैग अच्छे से डिसिप्लिन से रखो, उस लेक्चर के यूनिफॉर्म पहनो। 40 मिनट में 10 मिनट ऐसे ही चले गए, इंस्ट्रक्टर डंडा लेके खड़ा है, इधर नहीं, इधर चौक फेंक दिया, कुछ कर दिया, मैम मार दिया मेरे को, उधर इंस्ट्रक्टर डंडा लेके खड़ा है और बुरी बुरी गालियाँ लेके खड़ा है, क्योंकि वो हमें फिजिकली भी स्ट्रॉन्ग कर रहे पर मेंटली भी स्ट्रॉन्ग करना है। मेंटली स्ट्रॉन्ग वो गालियों से ही देते, गालियों से ही करते। गुस्सा कंट्रोल होना चाहिए बंदों को, गुस्सा। मेरा आर्मी में जाने के बाद मेरा गुस्सा कंट्रोल हुआ। मेरे को आज कितना भी गुस्सा आ जाए, मैं हाथ उठाने से पहले 4 बार सोचता हूँ कि हाथ उठाओ या नहीं। ये तो पहले मैं ये सोचता नहीं था, हाथ उठा देता था सीधा, जो होगा देखा जाएगा। पर आज के डेट में मैं 4 बार सोचता हूँ, खुद को शांत करता हूँ, क्योंकि गुस्से में मैं कुछ रिएक्शन नहीं देता, आदत सी बन गई। उसमें दो लेट क्यों, 10 मिनट लेट, उसमें वो रगड़ा देगा, दे रगड़ा दे रगड़ा दे रगड़ा, पूरा कपड़ा गंदा। वापस पीटी का पीरियड, वापस अब मेरे पीरियड में लेट आया ना, अब मैं भी लेट छोड़ूंगा, वो 5 मिनट वो खा लेगा, वापस उधर भी लेट, उधर भी रगड़ा। ब्रेक हुआ, 40 मिनट का ब्रेक, बैग उठाओ, रूम में जाओ, रूम में रखना भी नहीं है, सुबह साफ़ सफाई करिए, वापस कौन साफ़ सफाई करेगा, बैग रखना भी नहीं है, बाहर ही प्लेट लेके आना है, बस लेके आना है, ब्रेकफास्ट करना है, जितना पूरी हाथ में आए। देखना नहीं कि पूरी में तेल ज़्यादा है या पूरी कच्ची है या सब्जी अच्छी नहीं बनी, नमक है। हाथ डाला, जितना प्लेट में आया उतना मेरा, उसी में 4-5 बंदे खा लो, फटाफट वही तेल लगा लो और रेडी फॉर नेक्स्ट पीरियड। नेक्स्ट पीरियड में जाओ, उधर जाके मेंटेनेंस करो, वो पीरियड अटेंड करो। दिन भर बिस्किट के पैकेट्स, कई चॉकलेट्स, कई चने जेब में लेके घूमो, उसमें फ्रंट रोल मारे, जेब में मिट्टी चली गई, चनों में मिट्टी, अब क्या उसे धो तो नहीं सकते, पानी अवेलेबल नहीं है, आ जाओ ऐसे। 8 पीरियड रगड़ा ही खाना है, बाकी कुछ नहीं करना। टीचर सिखाता काम है, 10 पीरियड का 40 मिनट का पीरियड 10 मिनट में कंप्लीट कर देता है, बंदा रगड़े में ही सीख जाता है। दे रोलिंग, इतना हीरो बन के जाओगे आप। सुबह दोपहर में एक दूसरे की शक्ल नहीं पहचान पाते कि हाँ ये निखिल है, ये अब्दुल है, ये कोमल है, कोई नहीं पहचान पाता कि ये कौन है। और वापस जाओ, उसमें फिर नीचे जाके BHM खड़ा, जो लाइन का इंचार्ज होता है, रूम का इंचार्ज होता है। बच्चों आज साफ़ सफाई नहीं की थी तुमने सुबह जाते हुए, मेरे को कचरा दिखा, बाथरूम गंदा दिखा, वापस वो रगड़ा। उसी ड्रेस में जाओ, कपड़ा खाना खाओ, वापस शाम को वापस एक्स्ट्रा क्लासेस, जो जिस सब्जेक्ट में फेल है उसके लिए एक्स्ट्रा क्लासेस चलते थे, वापस 4 से 6 उसमें ड्यूटी दो,
दिन खत्म, कब दिन चालू हुआ कब दिन खत्म हुआ पता नहीं। एक पीरियड एक बैग से अगर कैप निकालनी हो, पता नहीं कैप कौन से कोने में घुसी रहती है, जूता पता नहीं कौन से कोने में घुसा रहता है, पूरा निकालो उसको वापस अंदर डालो, लेक्चर बैठो। यहाँ पे तो भी क्लास में सब अरेंज किया रहता है, हमें खुद जाके क्लास अरेंज करना पड़ता है। जैसे नेहा टीचर आ रही है, क्लास अरेंज करो, पूरा वाइट बोर्ड से पूरी मार्किंग, टॉपिक, सब्जेक्ट, समरी सब लिख के रखो, इंस्ट्रक्टर नेम, डेट, स्क्वाड नंबर, फिर कितने बंदे प्रेजेंट है, टोटल प्रेजेंट, कितने आउट है, बाहर कहाँ है, कहाँ गए, हर एक का हिसाब किताब रखो। उनके टेबल पर वाइट बोर्ड, क्लिप, पेंसिल स्टैंड, पेन, पेंसिल, रबर शार्पनर, पीछे वीआईपी सीट होती है, उनके लिए पेन, पेंसिल, रबर शार्पनर, उनकी चेयर अच्छे से साफ सूफ करके क्लासरूम रेडी करना पड़ता है। और उसमें भी कहीं धूल मिल गए ना, चलो बाहर, बस बाहर ही, बस बाकी कुछ नहीं। तो ये होता है पूरा ट्रेनिंग सिस्टम ऐसा। और एडवांस में फिर भी जो ट्रेड होता है, बेसिक ट्रेनिंग में सबको एक ट्रेनिंग दी जाती है, एक जैसी ट्रेनिंग, पर एडवांस ट्रेनिंग में जो ट्रेड वाइज है, जैसे ओपीआर रहता है उसको ऑपरेटर के बारे में, जो भी माइक, रेडियो सेट, साउंड सिस्टम, इसके बारे में उसे ट्रेनिंग दी जाती है। रेडियो सेट ऑलमोस्ट, इसके बारे में टेलीकम्युनिकेशन, लाइन कैसे बिछानी है, कम्युनिकेशन ए पॉइंट से बी पॉइंट कैसे कम्युनिकेशन तुम्हें पास करना है, कैसे भी वो खुद पास करता है। और हमें गन का, तो हमें गन पे पूरी ट्रेनिंग करते हैं। हम लोग तो गनर आधा तो ऐसे ही जान खा लेते, तुम लोग मार्शल ट्रेड हो, कम कैसे पड़ गए, दिन भर कदम ताल करो, दिन भर पूरा ऊपर से लेके जूते के सॉक्स तक सब गीला रहता है, जीभ ऐसे बाहर निकल जाती है रनिंग करते करते। हमारे टेस्ट होते हैं, नॉर्मल टेस्ट नहीं, टेस्ट होते तो भी धूप में, एक नहीं पीछे मुड़ गए, 29 पोजीशन, सर नीचे पैर ऊपर, सर सीधा जमीन पे, आंखें पूरी लाल, पूरा खून आ जाता है आंखों में, ये हालत हो जाती है। टेस्ट में भी फिजिकल टेस्ट है, बीपीटी जिसको बोलते हैं, बैटल फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट, इसमें 5 किलोमीटर का रन होता है, 13 किलो पीठ पे लेके बैग में, उसके अंदर सब अपना लड़ाई के मैदान का सामान होता है, प्लस राइफल लेके, कोचेस लगा के, कैप लगा के, उसमें रनिंग करो 5 किलोमीटर 25 मिनट के अंदर। जब बंदा आता है पूरी जीभ बाहर निकल जाती है। उसके बाद वही करके रोप चढ़ना है, जो फोटोज वीडियोज में दिखाया होगा उसमें राइफल टांग के पूरी रोप चढ़ना है 80 मीटर्स का, मंकी रोप होता है। तो मंकी को कभी ए पॉइंट टू बी पॉइंट जाते हुए देखा है, कैसे उल्टा लटके जाता है, उसमें वो भी हमें होता है मंकी रोप। कोई अगर कुछ आ जाए समझ लो तो उस टाइम पे हम क्या जाएंगे, ये सब टेस्ट में होता है, तभी टेस्ट पास। अगर मैं आज के टेस्ट में मंकी रोप में फेल हूँ तो ऐसा नहीं कि नेक्स्ट टाइम तू मंकी रोप ही देगा, पूरा टेस्ट वापस। ड्रिल का टेस्ट होता है, पूरा जूता सर को ऐसा चाहिए कि सामने वाले की शक्ल दिख जाए जूते में, ऐसा चमका के जाओ। बंदे रात भर जूता रगड़ते हैं, रात भर टॉवेल से, बनियान से, ब्रश से रात भर जूता रगड़ते हैं। एक्चुअली में उसमें अपना फेस दिखना चाहिए, जो ऑयल पेंट जैसा अपना होता है ना सर, वैसे। फिर भी अगर वो नहीं दिखा, टेस्ट फेल। मेरी ड्रिल सबसे अच्छी थी, मेरे इतने सब्जेक्ट्स में से मेरी ड्रिल सबसे अच्छी थी, जिसमें परेड वगैरह होती है। फिर भी मैं एक बार फेल हुआ था। क्यों? मैंने हैंकरचीफ मेरे राइट पॉकेट में रखा था। डिसिप्लिन का अगर देखा जाए तो पॉकेट हमें, लेफ्ट पॉकेट में हमेशा हैंकरचीफ रखना चाहिए। मैं आज भी अपने लेफ्ट पॉकेट में हैंकरचीफ रखता हूँ, ये आदत में शामिल है। प्रॉपर डिसिप्लिन चेक होता है, ऊपर से लेके नीचे तक, यहाँ के 3 बटन, पूरा चिन प्लस अपनी नेक प्लस 3 बटन, अपना बेल्ट का बैच, चेन एक लाइन में होनी चाहिए, थोड़ा भी इधर उधर नहीं, इधर उधर है टेस्ट फेल। तेरा एंकलेट जूता क्यों? हर टेस्ट में नया यूनिफॉर्म चाहिए, हर टेस्ट में। पुराना चलता ही नहीं था। क्यों वापस अभी उतना वापस प्रैक्टिस कौन करेगा, उतने पैर कौन मारेगा? धीरे धीरे कंप्लीट हो गई बेसिक ट्रेनिंग, एडवांस ट्रेनिंग। और उसमें भी बेसिक ट्रेनिंग में क्या होता है, बहुत से हरियाणा यूपी साइड के बंदे आते हैं, बहुत अनपढ़ लोग आते हैं। उसमें मैं ठहरा होली एंजल्स का बंदा, थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है, लिखना पढ़ना आता है, तो बात करने से मालूम पड़ जाती है कि हाँ भाई ये बंदा अच्छे स्कूल से पढ़ा है, अच्छे घर का है। तो मुझे बना दिया बैटरी लीडर। मतलब बैटरी लीडर मतलब मैं पूरे 175 बंदे मेरे अंडर में थे, मैं उनका पूरा हिसाब किताब रखता था कि ये बंदा कल एमएच जाएगा, ये कल कौन से क्लास में बैठेगा, कल कहाँ बैठेगा, पूरा का परेड स्टेट मैं बनाता था। जैसे अपने ऑफिस में ही बनता होगा परेड स्टेट कि कल क्या है, उस हिसाब से। और एडवांस में भी सब टीचर्स को पता ही था कि मैं बैटरी लीडर था, एडवांस में बना दिया स्क्वाड लीडर। अगर ये मेरा स्क्वाड है, इसमें से अगर ये बीमार पड़ गई, इसने बताया नहीं, तो पहला मार मेरे को पड़ेगा।
कि तूने बताया कि नहीं, तूने उसको ध्यान दिया, क्यों नहीं दिया, इसने अपना कैब भूल गया, तूने क्या इंश्योर किया कि उनका माँ बाप मैं हूँ, 25 बंदों का माँ बाप मैं हूँ। ग्राउंड पे जाने के बाद इंस्ट्रक्टर पर लाइन में किसी ने अपने आप को चोट पहुँचा ली, उसका जिम्मेदार मैं तो पागल हो गया था एक्चुअल में, देखा जाए एडवांस ट्रेनिंग में, अरे चलो रे, अरे झाड़ू लगा लो रे, अरे पोछा लगा लो रे। बेसिक ट्रेनिंग में तो 15 दिन तो मैंने बाथरूम के अलावा कुछ देखा ही नहीं था, दिन भर बाथरूम क्लीनिंग। क्योंकि क्या होता है, लड़कों को घमंड होता है, मैं राजपूत हूँ, मैं मराठा हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। वो घमंड उतारने के लिए सबको बाथरूम में बंदे टाइल्स है ना, टाइल्स ब्लेड से घिसते हैं, ब्लेड से नींबू लगा लगा के, पाउडर लगा लगा के, सोडा लगा लगा के टाइल्स घिसते। वो हमें पता है कि वो साफ होने नहीं वाला, पर उससे हमारा घमंड उतर जाता है कि हमें अपनी औकात मालूम पड़ जाती है। हमारी औकात क्या है, जवान, सिपाही या भारतीय। हमें एक दिन सर ने ऐसे ही खड़ा कर दिया, सबसे ऐसे ही पूछा, मैं तो राजपूत हूँ, सर ने खुद अपने से शुरुआत कर दी बढ़ाई करने की, मैं राजपूत हूँ। सब लोग अपनी अपनी कास्ट बता रहे हैं, हमारे कास्ट में ऐसा होता है, हमारे कास्ट में वैसा होता है। सर ने सबका सुन के ले लिया और ऐसा रगड़ा दिया कि हम तब से, अभी भी कोई पूछे ना यूनिफॉर्म में हो तुम, तेरी कास्ट क्या है, भारतीय हो। पूरा जितना भी कास्ट का जितना भी होता है सब चकनाचूर कर देते, कोई क्लास नहीं है, कोई कास्ट नहीं है, सब एक ही हो, भारतीय, बस उस हिसाब से चलो। ये देश किसका है, लोग बोलते हैं हमारा, हम ये नहीं बोलते ये देश किसका है, ये देश है मेरा। जब आप हमारा सोचोगे तब काम नहीं होगा देश में। लोगों को ये नज़रिया बदल लेना चाहिए कि ये देश किसका है, हमारा। मैं सोचूंगा हमारा देश है, अरे ये साफ कर देगी ये, पर उसी जगह मैं सोचूंगा ना ये देश मेरा है, वो नहीं, उसके भरोसे कहाँ बैठूंगा, मैं ही साफ करता हूँ, मैं ही बॉटल उठा के कच्चे के डब्बे में डाल देता हूँ। ये नजरिया तो ये चेंज कर तो देश अपने आप सुधरेगा। हमें कोई पॉलिटिशियन की जरूरत नहीं है देश सुधारने के लिए, खुद सुधर जाओ, देश अपने आप सुधरेगा, बस बाकी कुछ नहीं है।